नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभावनिदाता। प्रवचन सार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित प्रवचन सार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित प्रवचन सारनी टीका तत्व प्रदीपिका तथा जयसेनाचार्य भगवान रचित प्रवचन सारनी टीका तात्पर्य वृत्ति एनो આપણે સ્વાધ્યાય કરી રહ્યા છીએ। એમાં પ્રવચન સારના સ્વાધ્યાયમાં બીજો અધિકાર જ્ઞેય તત્વ પ્રજ્ઞાપન, એમાં દ્રવ્ય સામાન્યનો પેટાધિકાર પૂરો થવા આવ્યો છે। એની છેલ્લી ગાથા 126મી એનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ। આ ગાથા પછીથી અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાનના બે કળશ છે। તો આ ગાથા 126 એનો અન્વયાર્થ ટીકા આપણે કર્યા છે અને ટીકાનો જે થોડો ભાગ બાકી હતો તે આજે પહેલા વાંચનમાં લઈએ છીએ અને પૂજ્ય ગુરુદેવે આ ગાથા ઉપર આપેલ પ્રવચનનો કેટલાક અંશ કર્યા છે એ શેષ અંશો આજે લઈશું। તો ટીકાનો જે શેષ ભાગ બાકી છે તે વાંચતા પહેલા આપણે એનો અન્વયાર્થ જોઈએ। 126મી ગાથાના અન્વયાર્થમાં એમ કહ્યું કે જો શ્રમણ એટલે મુનિ કર્તા કરણ કર્મ અને કર્મફળ આત્મા છે એવા નિશ્ચયવાળો થયો થકો અન્ય રૂપે ન જ પરિણમે તો તે શુદ્ધ આત્માને ઉપલબ્ધ કરે છે। પછી એની અંદર ટીકાની અંદર એમ કહેવામાં આવ્યું કે જે પુરુષ એ રીતે કરતા કર્મ અને કર્મફળ આત્મા જ છે એમ નિશ્ચય કરીને ખરેખર પરદ્રવ્ય રૂપે પરિણમતો નથી, તે જ પુરુષ પરદ્રવ્ય સાથે સંપર્ક જેને અટકી ગયો છે અને દ્રવ્યની અંદર પર્યાયો જેને પ્રલીન થયા છે એવા શુદ્ધ આત્માને ઉપલબ્ધ કરે છે, પરંતુ અન્ય કોઈ પુરુષ એવા શુદ્ધ આત્માને ઉપલબ્ધ કરતો નથી। અને એને પછી આચાર્ય ભગવાને સ્પષ્ટ રીતે સમજાવતા બે રીતે વાત કરી। પહેલી વાત તો એ રીતે કરી કે પોતે સંસાર પર્યાયમાં હતો તો કઈ રીતે હતું, અને પછી બીજી રીતે વાત એ રીતે હતી કે પછી પોતે સાચો મુમુક્ષુ થયો છે તો કઈ રીતે। તો એ બે વાતનો આપણે વિચાર કર્યો છે, વાંચનમાં લીધું છે, અને હવે એના પછીનો જે છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે એ આજે લઈએ છીએ। આ રીતે બંધ માર્ગમાં તેમજ મોક્ષ માર્ગમાં આત્મા એકલો જ છે એમ ભાવનાર આ પુરુષ પરમાણુની માફક એકત્વ ભાવનામાં ઉન્મુખ હોવાથી, અર્થાત એકત્વને ભાવવામાં તત્પર, એકત્વને ભાવવામાં લાગેલો હોવાથી તેને પરદ્રવ્ય રૂપ પરિણતિ બિલકુલ થતી નથી। શું કહે છે અહીંયા સહેજ સમજી લઈએ કે આ રીતે બંધ માર્ગમાં તેમજ મોક્ષ માર્ગમાં આત્મા એકલો જ છે એમ ભાવનાર, ભાવનાર એટલે ભાવવું, અનુભવવું, સમજવું, ચિંતવવું। ફૂટનોટમાં સ્પષ્ટતા કરી છે, કહે છે કે કોઈ જીવને, અજ્ઞાનીને કે જ્ઞાનીને પર સાથે સંબંધ નથી। બંધ માર્ગમાં આત્મા પોતે પોતાને પોતાથી બાંધતો હતો અને પોતાને અર્થાત પોતાના દુઃખ પર્યાય રૂપ ફળને ભોગવતો હતો। હવે મોક્ષ માર્ગમાં આત્મા પોતે પોતાને પોતાથી મુક્ત કરે છે અને પોતાને અર્થાત પોતાના સુખ પર્યાય રૂપ ફળને ભોગવે છે। આવા એકત્વને સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ ભાવે છે।
તો એકત્વ કઈ રીતે છે કે એને પર સાથે કોઈ સંબંધ નથી, બંધ માર્ગમાં પણ નથી અને મોક્ષ માર્ગમાં પણ નથી. ક્યારેય એને પર સાથે તો કાંઈ સંબંધ હતો જ નહીં, વર્તમાનમાં નથી અને ભવિષ્યમાં પણ હોય નહીં. તો એ વાત અહીંયા કરવી છે કે છે કે આ રીતે બંધ માર્ગમાં તેમજ મોક્ષ માર્ગમાં આત્મા એકલો જ છે એમ ભાવનાર, એવી શ્રદ્ધા કરનાર, એવી માન્યતા કરનાર આ પુરુષ પરમાણુની માફક એકત્વ ભાવનામાં ઉન્મુખ હોવાથી, અર્થાત એકત્વને પામવામાં તત્પર લાગેલો હોવાથી તેને પરદ્રવ્ય રૂપ પરિણતિ બિલકુલ થતી નથી. અને પછી આગળ કહે છે, તેને પરમાણુની માફક અર્થાત જેમ એકત્વ ભાવે પરિણમનાર પરમાણુ પર સાથે સંગ પામતો નથી, તેમ એકત્વને ભાવનાર પુરુષ પર સાથે સંપૃક્ત થતો નથી. સંપૃક્ત થતો નથી એટલે કે સંપર્ક વાળો થતો નથી, સંબંધ વાળો થતો નથી, સંગ વાળો થતો નથી. તેથી પરદ્રવ્ય સાથે અસંપૃક્તપણાને લીધે તે સુવિશુદ્ધ હોય છે. વળી કર્તા, કરણ, કર્મ અને કર્મફળને આત્માપણે ભાવતો થકો તે પુરુષ પર્યાયોથી સંકીર્ણ ખંડિત થતો નથી, અને તેથી પર્યાયો વડે સંકીર્ણ એટલે ખંડિત નહીં થતો હોવાને લીધે સુવિશુદ્ધ હોય છે. અહીંયા કહે છે કે વળી કર્તા, કરણ, કર્મ અને કર્મફળને આત્માપણે ભાવતો એટલે અહીંયા એક સ્પષ્ટતા કરી છે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ ભેદોને નહીં ભાવતા અભેદ આત્માને જ ભાવે છે, અનુભવે છે, એમ આત્માપણે ભાવતો, એવો અર્થ અહીંયા કરે છે. કર્તા, કરણ, કર્મ અને કર્મફળ ચારને આત્માપણે ભાવતો થકો તે પુરુષ પર્યાયોથી ખંડિત થતો નથી, અને તેથી પર્યાયો વડે ખંડિત નહીં થવાને લીધે સુવિશુદ્ધ હોય છે. તો આ રીતે 126મી ગાથા છે. આપણે આ ગાથા પર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તેનો આગળનો ભાગ આપણે લઈએ છીએ. પ્રવચન સુધા ભાગ 5મો, એના પાના નંબર 422, છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે. यहाँ तो भगवान अमृत चंद्राचार्य अपनी बात करते हैं, ત્યાંથી શરૂ કરી અને પૂજ્ય ગુરુદેવ આપણને સમજાવે છે. અહીંયા તો ભગવાન અમૃતચંદ્રાચાર્ય अपनी बात करते हैं અને જ્ઞાની की बात ज्ञानी आ विचार करते हैं, ऐसा कहते हैं. मैं अनादि निबोध से मानकर नवमी निर्वेद तक गई मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी साधु संत महाभारत पाया 28 मूल पाया. एक विकार का कार्य मैं किया है, विकार दूसरा માટે किया ऐसा है नहीं, कि दूसरा ये कराया માટે है नहीं. दुख नाम का कर्म फल ये शिवासु भाव ने मिथ्याद भाव, ये कर्म कार्य हुआ मेरा साधन से हुआ, मेरी स्वतंत्रपना कर्ता से हुआ, मेरा साधकतम से हुआ, और मेरा कार्य मेरे से हुआ, और उसका फल भी मेरे से दुख हुआ. जो के उपरोक्त चैतन्य रूप परिणमित होने के स्वभाव से उत्पन्न किया जाता है. ये दुख भी चैतन्य स्वभाव का ही पर्याय में विपरीत भाव, ये चैतन्य स्वभाव का विपरीत भाव है. आनंद स्वरूप भगवान पहले लिया ना, ये तो लिया अकेला सुख से विपरीत है, कहा ना भगवान आत्मा तो आनंद स्वरूप प्रभु, तो मैं अकेला आनंद स्वरूप से विपरीत. दुख का फल का वेदन मैं किया, मेरे से किया है, कोई से किया नहीं.
भाई कर्म का उदय आया तो मेरे विकार करना पड़े, दुख वेदन पड़े, ऐसा है। योना मोरबी ની વાતો તો નવી નવી કેટલી આવે છે। એક જણો કે 7 કલાક સુધી માથે બેસી રહ્યા પતિ પત્ની બે ભાઈ કહેતા રવિશું એને દીકરીને જમાય એક બસના ઉપર 7 કલાક પછી ત્યાં પાણી આવ્યું, નીચે મોટું મકાન હતું ત્યાં કૂદકો માર્યો, 11 કલાક ત્યાં રહ્યો તો કલાકમાં પાણી ઉતરતા ઉતરતા શંકા પડે ક્યારે વેગ આવશે। ये वक्ते पण जी विकल्प किया ये मैं मेरे से किया है, बिल्कुल नहीं, पानी में पूरने कारण नहीं। द्रव्य को पानी छूते ही नहीं, आत्मा का विकारी भाव को कर्म छूते नहीं, कर्म को आत्मा छूते नहीं, आत्मा शरीर को कभी छूता ही नहीं, छुया ही नहीं। अरे आई बात केम आमा अभियान के छूता नहीं, पर प्रभु छूता नहीं। क्योंकि परमाणुओं ने आत्मा के बीच में अनंत अत्यंत अभाव स्वभाव है। शरीरना परमाणुनी पर्याय आ तो पर्याय है ने भगवान आत्मा की पर्याय वे बीच में तो अत्यंत स्वरूप विपरीत है। एक परमाणु दूसरा परमाणु से छूटे नहीं, वो आत्मा परमाणु से छूटे नहीं, परमाणु आत्मा को छूटे नहीं। मैं मेरे से मेरा परिणाम राग द्वेष करके दुख का फल में मेरा फल अनुभव है। और अब आप विचार सम्यक दृष्टि करते हैं। अज्ञानी ने एवा विचार हो नहीं, अज्ञानी तो माने मेरे पर से होता है, पर से होता है। धर्म नो जोर है भाई मारे शास्त्र में दाखला आवे मोक्ष में प्रकार पानी ना पूर में मानस वही हो जाते हमारी वक्त एनु काम ना हाले, पानी में पूर जो घटे तो काम हाले नहीं, यूं चालू है थोड़ा आवे ये तो निमित्त नहीं कथन से देखो घना आवे। कर्म नो क्षय थाय तो केवो ज्ञान थाय, घाती कर्म नो उदय आवे त्यारे विकार थाय। ये बड़ा निमित्त ना कथनों से पण एनाथी थाय, ऐसे है नहीं। एवी स्वतंत्रता कर्तापणानी करता है उसके कहीं स्वतंत्रपणे करे, स्वाधीनपणे करे, उसको करता। ये करता नहीं व्याख्या व्याकरण में भी नहीं। हाँ 16મી ગાથામાં આવી ગયા, 16મી ગાથા કરતા કર્મ કર્મ માટી નો દાખવાથી। ये नीचे लिखी ત્યાંથી જોજો। अब अनादि से पौद्गलिक कर्म भी की, भले अनादि पौद्गलिक कर्म निमित्त था, ये बंधन रूप उपाधि की निकटता के नाश है। मेरी पर्याय में उसका संबंध न रहा, मैं मेरा स्वभाव सन्मुख हुआ तो कर्म का संबंध का नाश हुआ। ये नाश हुआ उसके कारण से, पर ये नाश की निकटता ना संबंध में है। अनादि से पुगड़ों की बंधन उपाधि की निकटता के नाश है, जिसकी सुविशुद्ध सहज स्वाभाविक स्वप्रणति प्रकट हुई है। मेरी शुद्ध स्वभाव वर्णति ये शुद्ध स्वभाव त्रिकाल द्रव्यगुण है। गुण अनंत अनंत बधे ठेकाण आवे छे,
પણ ગુણની સંખ્યા હોય કંઈક આવવું તો જોઈએ ને. જેમ આકાશના પ્રદેશ અનંત ગુણાકાર આ ત્રણ કાળ સમય કરતા, તો ગુણની સંખ્યા તો આવે કે નહીં શાસ્ત્ર સમજમાં આવ્યા? તો કેમ જય ધર્મ મહાધર્મ को हाथ આવતું ना एम के अनंत गुण है, पर ये अनंत गुण कितनी संख्या में किसके साथ उसको मिलान करना, ये अविभाग प्रतिच्छेद नहीं. अविभाग प्रतिच्छेद तो एक एक पर्याय अनंता, ये नहीं. आ तो गुणની સંખ્યા. આમ તો 85 કે મેં અગુરુ લઘુ અનંત આવે છે, એ અગુરુ ગુણ નથી, એ અગુરુ લઘુની પર્યાય છે. 85 કયા પાઠ છે, અનંત અગુરુ લઘુ ગુણ એક પાઠ છે, એ ગુણ નહીં, પર્યાય છે. અનંતની વ્યાખ્યા તો બધે ઘણે ઠેકાણે, પણ એ એક પહેલા ઘણા વર્ષ પહેલા હિમોચંદ જયારે વાત થઈ હતી, उसको बहुत अच्छा था कठिन आगे में, तो उसने बताया अपना वैसे इतना पुस्तक में शुरुआत क्या जाए मोरालों के लिखने से को गुणની સંખ્યા કિતના, જેમ આકાશના પ્રદેશની સંખ્યા ત્રણ કાળના સમયથી અનંત ગુણી કે જેનો અંત નહીં એની સંખ્યા કઈ. तो आ गुण तो इतना क्षेत्र में है, पर उसकी भाव की शक्ति की संख्या कितनी, तो अनंत गुणी संख्या चलती थी बात. मैं तो घर पहुंचे पूछूं એટલે શાસ્ત્રનો આધાર આ આવતો નથી. बात तो है तो ऐसा ही समझ में आया. बाकी आकाशना प्रदेश थी पण अनंत गुणा गुण की संख्या है. हाँ हाँ हाँ, जय धो के माधव में शास्त्रों घना ग्रंथों पड़ा. हाँ हाँ, એટલું બધું याद पासों से आ ठिकाने से हूँ याद क्या थी रही. हाँ हाँ हाँ, कहते हैं कि जिसकी सुविशुद्ध सहज प्रणति स्वप्रणति निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान ने शांति की शांति बिगाड़ी स्वप्रणति प्रकट हुई है. अब मेरे सुविशुद्ध स्वाभाविक स्वप्रणति शुद्ध प्रणति विरागी प्रणति निर्दोष दशारूप प्रणति प्रकट हुई है. हाँ हाँ, जो आ સંકિત દ્રષ્ટિ પોતાને આ જાણે છે, અનુભવે છે, એને ખબર નથી કેટલા કે સંકિત થઈ શી ખબર પડે. અરે સુન તો સહી है अंधा है. हाँ, ये कहते हैं जिसकी सुविद्युत स्वप्रणति प्रकट हुई, ऐसा मैं तो आया कि नहीं, ख्याल ज्ञान में आया कि नहीं. सुविशुद्ध परिणति में प्रकट हुई है, ऐसा मैं प्रकट हुई है, ऐसा मैं हूं. આ કેટલાક બધી વાતો વ્યવહાર નહીં કરો, નિશ્ચય નહીં, એ ખબર ન પડે સંકિત થયું છે કે નહીં. હા, સારી કરે બરાબર. શું કરે છે તું બચાવ કરવા હતું? हाँ हाँ, यहाँ तो कहते हैं कि सुविशुद्ध स्व सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान शांति सौभाग्य, ऐसी स्वप्रणति बोले विकार प्रणति उपाधि प्रणति હતી, અને આ સ્વપ્રણતિ निर्मल प्रणति अपनी है. सम्यक दर्शन ज्ञान शांति चारित्र आदि स्वरूप स्वप्रणति स्वपर्याय, पर्याय की बात है ना. यहाँ प्रकट तो पर्याय होती है ना, गुण प्रकट होता है कि द्रव्य प्रकट, ऐसा नहीं. हाँ हाँ हाँ, स्वाभाविक स्वप्रणति એમ છે ને. હા હા, સહજ આનંદની પરિણતિ, સહજ સમ્યક દર્શનની પરિણતિ, સહજ સમ્યક જ્ઞાન, જ્ઞાનમાંથી જ્ઞાનની પરિણતિ,
शास्त्र ज्ञानी आई नहीं। समझ में आया? स्वप्रणति प्रकट हुई है। ऐसा मैं प्रकट हुई है, ऐसा मैं असम्यक दृष्टि जानते हैं। समझ रहे? मुझको एम कहती कि जनाई नहीं, अरे मारा आंधो सम्यक दर्शन प्रकट हो ने जनाई नहीं, क्या कहते बात? क्या कहते हैं? आचार्य संकीर्ति जीव एम विचार करते हैं, इसकी बात करते हैं। एम कहते हैं ना, अपनी भी करते हैं न, समकी दृष्टि अपना पूर्व का भाव में क्या था, वर्तमान में क्या हो, ऐसी बात करते हैं। समझ में आया? भाषा है ना, टीका। जो पुरुष इस प्रकार करता कर्म आत्मा ही है, या निश्चय करके वास्तव में पदद्रव्य परिणमित नहीं होता। देखो ना, इतना अपने की बात नहीं है, टीका ने पहले लिखी। टीका हिंदी टीका शुरुआत, टीका संस्कृत नहीं, हिंदी पहला शब्द। जो पुरुष छवि गाथा अनव्यार्थ हुआ ने पहले टीका अनुशब्द। जो पुरुष इस प्रकार करता कर्म फल आत्मा है, यह निश्चय करके देखो वास्तव में परद्रव्य परिणमित नहीं होता। एकला आत्मा की बात आचार्य नहीं है, समझी बात है। वही पुरुष है, मैं बने जिसका परद्रव्य के साथ संपर्क रुक गया है, जिसकी पर्याय द्रव्य के भीतर तलीन हो गई है, ऐसे शुद्धात्मा को उपलब्ध करता है। परंतु अन्य को ऐसे शुद्धात्मा को उपलब्ध करता नहीं, ये स्पष्ट या समझाते हैं हमके। मैं अकेला अनादि से करता कर्म संप्रदान पादाधिकरण, इतना सौलत व्याख्या दिया है। करता कर्म फल चार दिया है, संप्रदान अधिकरण चार दिया नहीं, चार दिया है। समझ में आया? सट कारक में से चार कारक दिया है। कर्ता स्वतंत्रपने में विकारी पर्याय किया, अभी में स्वतंत्रपने निर्विकारी परिणाम में प्रकट हुई है। पंचमहाराणा संत तो कहते हैं, पर जिसको समझाते हैं ये समझ में आया, ये कहते हैं। स्वप्रणति पर ये समय जपा कुसुम की निकटता के नाश में स्फटिक मणि में जब फूल नजीक था उसका अभाव हुआ, जिसकी सुविशुद्ध सब स्वभाव प्रणति प्रकट हुई स्फटिक ने, ऐसे स्फटिक मणि की भांति जिसका पर के द्वारा आरोपित वास्तविक विकार मेरे में है नहीं, द्रव्य गुण में, पर पर्याय में आरोपित विकार मेरे से हुआ है। आरोपित विकार रुक गया है। यहाँ पहले नदी का था, आप आरोपित विकार रुक गया है। विकार रुक गया है, ऐसा भान हुआ यहाँ हम कहते हैं। समझ में आया? आएगा तो वितराग मार्ग से बात सर्वोज में परमात्मा आके कुछ पक्ष में बात ना थी। यानी दर्शन शुद्धि समझना, प्रकट करना, ये कोई अलौकिक चीज है। ये बिना था त्याग वगैरह सब मींडा है, इतना बिना ना। समझ में आया? कहते हैं कि स्फटिक मणि नहीं पेटे, स्फटिक मणि में लाल पीला फूल नो संयोग नहीं, તેથી સ્ફટિક મણમાં લાલ ફૂલ अपने से नहीं है रंग, ऐसे
आरोपित विकार रुक गया है। ऐसा होने से एकांततः मुमुक्षु है, एकांत में मुमुक्षु हूँ। मैं तो मोक्ष ना अभिलाषी की हूँ। समझ में आया? मुमुक्षु नाम केवल मोक्षार्थी। मेरे तो बंधन से रहित स्वर्ण आनंद की प्राप्ति का प्रयोजन ऐसा मैं मुमुक्षु हूँ। समझ में आया? मुमुक्षु मंडल में कहता नहीं जाते अपने तो मुमुक्षु आवा हो गए। केवल मोक्षार्थी हूँ। अपने अपने को अनुभव में कहते हैं। अभी भी मुमुक्षु दशा में, ज्ञान दशा में भी वासना मेरा कोई भी नहीं। मेरी सम्यक दर्शन ज्ञान परिणति हुई तो कोई कारण से मेरे संबंध नहीं। आई तो काल लब्धि पाकी में के हुई ऐसा। ऐसा तो देखो। अभी भी मुमुक्षु दशा में, ज्ञान दशा में भी वासना मेरा कोई भी नहीं, कर्म मेरा नहीं, कुटुंब मेरा नहीं, लड़का मेरा नहीं, कोई चीज मेरी नहीं, शरीर मेरा नहीं। अभी भी मैं अकेला ही करता हूँ। इन शुद्ध परिणति, धर्म परिणति, सम्यक दर्शन ज्ञान में धर्म परिणति पर्याय अभी भी मैं अकेला ही करता हूँ। इस सम्यक दर्शन का परिणाम का मैं अकेला करता हूँ। दर्शन मोहनो अभाव हुआ न मेरे संकित हुआ, ऐसी अपेक्षा मेरे में है नहीं। समझ में आया? अंदरूनी बात है भाई। आत्मा वास्तव में मेरा कोई के कारण से मेरे सम्यक दर्शन हुआ ऐसा है नहीं। मैं तो करता हूँ तो स्वतंत्र मेरा स्वाधीन से मैं धर्म दशा प्रकट किया है। 8 वर्ष में बालिका हो ने सम्यक दर्शन पाने तो ऐसे मानते हैं। उसको भी इन्हें खबर पड़ती अंदर में को मेरी आनंद दशा प्रकट हुई, आनंद का स्वाद आया तो मैं मेरे से प्रकट किया है। समझ में आया? आओ मारो मारो બે કારણથી કાર્ય થાય તરાય તો ના પડે છે। ભલે નિમિત્ત કારણ હો તો એનાથી થાય એમ ऐसा है नहीं। नहीं तो कहा समझ में आया? निमित्त का अभाव हुआ तो मेरे निमित्त का अभाव हुआ उससे मेरी आदशा हुई है, ऐसा नहीं। लक्ष्मी आत्म लक्ष्मी प्रकट हुई सम्यक दर्शन में और केवल ज्ञान का अंश आया और आनंद का वेदन आया तो के मेरे में परिणति में स्वतंत्रपणे करता उतर के आयो। पूर्व की पर्याय की मदद की माटी क्या ऐसा ही नहीं। देव गुरु शास्त्र ने निमित्त ने मदद किया माटे नहीं। तो शास्त्र में आता है ना निसर्ग अभिगमात संकित। संकित 2 प्रकार, एक निसर्ग था एक अभिगमात गुरुगम से होता है। ये तो निमित्त क्या निमित्त था इतना ज्ञान कराया हुआ है तो ये वक्त निसर्ग से है। समझ में आया? तो
क्योंकि मैं अकेला ही विशुद्ध चैतन्य रूप स्वभाव से स्वतंत्र हूं। बोला मैं ये मत हूं, क्योंकि स्वभाव से स्वतंत्रता, मलिन चैतन्य रूप स्वभाव से स्वतंत्रता, यहाँ अकेला शुभ चैतन्य स्वभाव से स्वतंत्र हूं। अरे बात बापा वितराग्नि राज्य बेगिने वितराग्नि वातु सर्वीय मोहनु की बात भाई। रागनी मंदता किया तो मेरे स्वतंत्रपणे विशुद्ध पर्याय हुई, ऐसा है। मेरी पर्याय वर्तमान निर्मल जो हुई स्वतंत्रपणे, मेरा स्वभाव स्वाधीनपणे सम्यक दर्शन ज्ञान ની पर्याय पैदी करी। अज्ञान भाव में भी मैं स्वाधीनपणे किया, ज्ञान भाव में भी स्वाधीन किया, और की अपेक्षा मेरे की अज्ञान में भी नहीं न ज्ञान में भी नहीं। समझ में आया? अर्थात स्वाधीनपणे करता हूं, मैं अकेला ही करण हूं। सम्यक दर्शन ज्ञान रूपी धर्म पर्याय में अकेला ही साधन में हूं। क्योंकि मेरे में साधन नाम का गुण है, तो ये गुण की परिणति में साधकपना मेरा ही कारण से है। समझ में आया? पर्याय में भी साधकपना अपने से स्वतंत्रपने, साधक नाम का गुण है भले, पर ये गुण में भी अपेक्षा नहीं नीचे की। धर्म की पर्याय में स्वाधीनपणे, साधकपणे, स्वतंत्र पर्याय का कर्ता स्वाधीनपण होकर के आए, यानी साधकतम पर्याय मेरी है, मैं साधकतम का प्रयोग किया है। मैं आई हूं क्या तो द्रव्य जाने, पर परिणति मेरी परिणति मेरे से उत्पन्न हुई है। अरे बात नहीं क्या अरे स्वतंत्रता की मूल बात हજી સાંભળવા મળે નહીં, એ સમજે ત્યારે એને સાચી વાત લોકોને આ કરો લોકોની સહાય લો, એકબીજા સાધન में મદદ કરો તો શાંતિ તમને રહેશે, આવી કલ્પના આવે। एकला ने शांति नहीं रहे एम कहते हैं, जोड़े वाला ने शांति से आपसो तो मदद लोग सुखी से में शांति रहे। हाँ कहते मेरी शांति में कोई कारण है नहीं, मेरी शांति जो स्वभाव की परिणति ये साधकतमपणे मैं ही किया है। उसका साधक मैं हूँ, स्वतंत्रपणे साधक हूं, कर्तापणे स्वतंत्रपणे करता हूं। है मैं अकेला एक कर्म हूं, विकारी रहित निर्मल दशा, ये मेरा कार्य में अकेला ही हूं। मेरा कार्य में 2 जना है, निमित्त भी है मैं भी हूं, ऐसा नहीं। निमित्त हो પણ નિમિત્ત है न मैं हूं, 2 થઈને मेरा कार्य हुआ है धर्म। अकेला ही कर्म हूं है कार्य,
क्योंकि मैं अकेला ही सुविशुद्ध चैतन्य रूप परिणमित होने से स्वभाव के कारण वो में भी स्वभाव आया पर्याय का विकारी भी पर्याय का निर्विकारी स्वभाव के कारण आत्मा से प्राप्त हूँ, आत्मा से शुभ कार्य का प्राप्त करता हूँ। शुभ कार्य जो शुद्ध खरेखर तो शुद्ध ने शुभ कहते हैं। मोक्ष मार्ग दिखा समझ में आया? शुद्ध परिणति को ही शुभ कहते हैं, शुभ शुभ परिणति को दुई को अशुभ कहते हैं। मोक्ष मार्ग में आवे समझता हूं। मैं अकेला एक शुद्ध निर्मल धर्मना परिणाम का अकेला प्राप्त मैं करता हूं। वितरागी सम्यक दर्शन रागी होता ही नहीं। वितरागी सम्यक दर्शन, वितरागी स्वनाम ज्ञान, वितरागी स्वरूप में स्थिरता, ऐसा जो कार्य कर्म मैं प्राप्त करता हूं, इस कार्य को मैं प्राप्त करता हूं। अभी बात है, अभी थोड़ा सुना रखड़ता वितराग में मारो टीका में क्या है? अरे जीवन आत्मा ने मरण पूर्ण કરી નાખ્યું, મરણ પૂર્ણ કર્યો। એ વિતરાગ તીર્થંકરની વાણી સિવાય ભ્રાંતિ નહીં તોડાય। ઘણા લોકોના નાથની વાણીનો ભાવ, એ ભાવ સમજે વિના ભ્રાંતિ નહીં તોડે। समझ में आया? है ना? क्या फलसिका है, फलसिका है ना उसमें। पण ये तीर्थंकर की वाणी मिली, पण कर्म करे किया तो मैंने सम्यक दर्शन की पर्याय का कर्ता न करण ने तो आनंद का एक मेज किया है ना, निमित्ते भगवान की वाणी किया है नहीं। और मैं अकेला ही प्रथम हूं। अनाकुलता लक्षण वाला शुभ नामक कर्म फल हूं। मेरी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद रूपी परिणति हुई, ये मेरा आत्मा का फल है। सम्यक दर्शन ज्ञान की परिणति का कर्ता मैं, साधक मैं, कार्य सुख प्राप्त करती हूँ मैं। उस समय सुख प्राप्त हुआ, एक समय भी मैं सुख प्राप्त किया है। अनाको फल भी मेरा है, मेरे से अनाको फल प्राप्त हुआ है सम्यक दर्शन में। आए तो देव पुरुषार्थ श्रद्धा ना के बस लई जो पड़ी में लई जो रस्तो होतो। अरे प्रभु શું કરે सारा पंचनी बातों। कहते हैं सम्यक दृष्टि अपने को वर्तमान में शुद्ध परिणति का कर्ता, शुद्ध परिणति का साधन, शुद्ध परिणति का कार्य और शुद्ध परिणति का अनात्म फल। क्या बोल लिया यहाँ संप्रदाय में पालन लिया, अधिक हम लिया पंद्रह चार लिया। प्राप्त करता हूँ मैं कर्म आदि कर्म। जो के सुविशुद्ध चैतन्य परिणमित होने के स्वभाव से उत्पन्न किया जाता है,
ये समय में अनाकुल आनंद रूपी फल मेरे से उत्पन्न किया है। शुभ विशुद्ध चैतन्य परिणमित होने के कारण शुभ विशुद्ध है नीचे अर्थ है। सुविशुद्ध चैतन्य परिणाम स्वभाव आत्मा का कर्म है और यह कर्म अनाकुलता स्वरूप सुख को उत्पन्न करता है। इसमें सुख है कर्म फल है। सुख आत्मा की अवस्था होने से आत्मा ही कर्म फल है। दुखे भी आत्मा है हम कहते हैं, आनंद ही आत्मा है। दुखे अपनी पर्याय ने किया था ना, वही में आत्मा हमने आता है। आज मेरी पर्याय में मैं प्रकट किया तो मेरा आत्मा ही है। आओ हमारे स्वतंत्रता में नारायण रूप को स्वतंत्र करना સાંભળીએ તો સનક દર્શન થાય એ વાત નહીં કાઢી નાખે છે. સાંભળવાનું મળ્યું માટે મને સનક દર્શન થયું. ના, मेरी शुद्ध परिणति से मेरी शुद्ध सनक दर्शन. આવીને આ જન્મ મરણના અંત નહીં આવે પ્રભુ. લોકોને આ મોરબીની વાતો ત્યાં સાંભળે ત્યાં હતા. ગોરડે ચડીને પાણી કેટલું આવે છે, હજી શું આવશે? પાણી ઉતરી ગયું હોય તો કલાક પછી તોય હજી શું થશે? આ આત્માના ચૈતનના પૂરું શું છે? भरती जब दरिया ने कांठे बाढ़ आती है, एवं पर्याय में संजक दृष्टि को अनाकुल आनंद की बाढ़ आती है. चौथे गुणस्थान आत्मा तो बात શું કરવી, એને તો વિશેષ આનંદ है. મુનિની શું વાત કરવી, એને તો વિશેષ આનંદ, प्रचुर स्वसंवेदन है. साचा संत जैने के लिए इसको तो प्रचुर स्वसंवेदन आनंद का है. प्रचुर 5वें कथन है समझता मुकुंदाचार्य कहते मैं प्रचुर स्वसंवेदन से समझता कहूंगा, मेरा वैभव से कहूंगा, मेरा वैभव पैसा बाहरी छोकरा मेरा वैभव है तो धूल पाड़ में जीव राग नो ये वैभव जीवनो नहीं. मेरी आनंद नहीं पर्याय प्रकट हुई. ये मेरा वैभव है. ये वैभव में रहकर मैं वाद करूंगा. सही तो नहीं मंदी तुम सिद्धि ओछा नहीं वैभव में वैभव से हूं कहूंगा. ત્યાં તો ऐसा कहा संयतम वियतम येतम विगतम राग से विभक्तम दाएं अपनो वीरवेण. मेरा अंतर वैभव से मैं कहूंगा. कहूंगा तो वाणी है. मेरा अंतर वैभवनी भूमिका में ये वाणी निकलती है. समझ में आया? यदि दाए खरी न दू संग एकम वियतम दाए अपनो विवेण अपना वैभव से कही शुरू. પણ જદી દાએ પ્રભુ કદાચ જો કહેવાનું પ્રમાણ કરજો, અનુભવ કરીને પ્રમાણ કરી દે. ઢીલી મોડી વાત રાખીશ નહીં. જો આ સંતોની વાણીના જોર શ્રોતાને એમ કહે છે કે હું જો દેખાડું તત્વ તને
રાગ સે ભિન્ન અને સ્વભાવ સે એકત્વ પ્રભુ સ્વભાવનો અનુભવ કરીને પ્રમાણ કરજે. હા શું દિગંબર સંતોની વાણી. હા હા એની પાસે બધા ભરે પાણી એવી અનોખી વાતો છે જેના એક એક પદની ગંભીરતા. હા ડૂબી જાય આત્મા આનંદમાં એવી એ વાત છે. પ્રમાણ કરજે પ્રભુ પણ હજી આ તો પાડવા જેવું એ અહીંયા આબાની આવી વાત નહીં. પેલો વિકલ્પથી નિર્ણય તો કરવા જેવું એ નહીં. હા 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 જો તને દેખાણું તો અનુભવથી પ્રમાણ કરજે એક જ. હા હા શ્રી વાણી વિતરાગની અમૃતના ઝરણા ઝર્યા છે. દિગંબર સંત હોય તો અમૃતની વાણી. હા હા જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પાનો દુઃખ જન્મ સમજાયું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવાન જ્ઞાવંતારે જ્ઞાની અમૃત વર્ષારે પંચમ કાળમાં. એ નાથ પંચમ કાળમાં અમૃત વરસાવ્યા નાથ. હા આગની વાતો દયાદાનની વાતો એ તો બધી ઝેરની વાતો હે. હા હા સમજ આયા. વચનામૃત વિતરાગના પરમ શાંત રસમો. વાણી નહીં વાણીમાં થયેલો ભાવ. હા વચનામૃત વિતરાગના અમૃત વાણી અમૃત પરમ શાંત રસમો. કોણ ઔષધ જે રોગના કોણ કાયર ને પ્રતિકૂળ રે ગુણવંતારે જ્ઞાની અમૃત વર્ષારે પંચમ કાળમાં. આ પંચમ કાળ છે અને આવો કાળ એ તને નહીં નડે ના. એમ કે છે પંચમ કાળમાં પણ પ્રભુ તું પ્રમાણ કરજે. અમને ખબર નથી તો પંચમ કાળનો હંમેશા તો પંચમ કાળ શું જોતા અને પંચમ કાળમાં ન બને એ વાત રહેવા દેજે. હા હા ये शुभ शुभ चैतन्य परिणमित है न होने के स्वभाव से उत्पन्न किया जाता है. इस प्रकार बंध मार्ग में और मोक्ष मार्ग में आत्मा अकेला ही है. ये मिथ्यात्मा बंधन में पण एक ही लोग विकार नो करता है. कोई का साथ संबंध है नहीं. हाँ 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 जो वितराग ત્રણલોકના નાથનો પ્રકાર કર્યો એ સંતો વાડપિયા એને વાત કરે છે. એ અનુભવીને વાત કરે છે. હા 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 એવું છે. 10 વર્ષની ઉંમર પહેલાની વાત છે. 79 વર્ષ પહેલાની 80 વર્ષ અમારા પાડોશી હતા ભૂંગલીના. એટલે મારી બામાં ભૂંગલી નો હાવ અને એ નોકર હતા ઉતારાના. મૂળજી મામા કહેતા. પછી નાય ને દયાબેન નહોતા રાખતા, ભૂંગલી રાખતા. એકલા રહેતા, આવતા કોઈ વખતે અને છોકરો મારી નીકળ્યા. પછી માતાને બુટલું પહેરે ને જયારે આમ બોલતા. આ તો શીખ 79 વર્ષ પહેલાની વાત છે. અનુભવીને એટલો રે આનંદ મારે હું રે ભજો આ પરિભ્રમને બીજું કાંઈ ન કહેવું રે.
हाँ हाँ हाँ, ये वक्त કીધું આ શું બોલેગા એને ખબર ન મને બોલે જાય અનુભવીને સંકિતી દ્રષ્ટિ જે આત્માનો અનુભવ આનંદના સ્વાદ એને આવ્યા આનંદના જેને ઘૂંટડા પીધા જેમ શેરડી શું શેરડી કે તમારે ગન્ના કા રસ જેમ ઘટ ઘટ પીવે એમ સંકિતી આત્માના તરફની એકાગ્રતાના અનુભવ ઘટઘટ પીટે ये आई कहते हैं मेरा बंद मार्ग में अनादि में अकेला था अने मोक्ष मार्ग में भी आत्मा अकेला ही है दुए में अकेला ही है वरना संबंधनो बंध मेरे में बिल्कुल नहीं वरना संबंधना कारण मेरे बंध में मोक्ष एक बिल्कुल नहीं अरे मूवा पड़ी में दाड़ा पाकड़ा पीड़्या झाड़ना तो मूळ हाजू ये मूळ पाछा 15 दी एम आत्माना दर्शन विना रागनी मनतानी क्रियानी वातो करी बधी पण ए मूळ छेद्यु नथी मिथ्यात्वનું અને સંકેત દર્શન રૂપી પર્યાય પ્રગટ કર્યું નથી ત્યાં સુધી એ બધા તોડેલા પાંખડા પાછા એના આવવાના એ દ્રવ્યંગી 28મો ગુણ પાળે પ્રાણ જાય તો એને માટે કરેલો ચોખાનો આહાર લે નહીં પાણીનો બિંદુ એવી ક્રિયા અનંતવાર કરી પણ એ સમ્યક દર્શન વિના એ ભવનું એ ભગવાન समझ में आया ये यहीं कहीं इस प्रकार पाने वाला है भावनावाद अनुभव करना समझना चिंतन करना किसी जीव का ज्ञानी या ज्ञानी का वर्ग के साथ संबंध नहीं है नीचे नॉट बंद मार्ग में आत्मा स्वयं निज को निज से बनता है और निज को अपने दुख पर्याय रूप फल को भोगता था मोक्ष मार्ग में आत्मा स्वयं निज को निज से मुक्त करता है बंद मार्ग में भी स्वयं निज को निज से बांधता था અને અત્યારે આનંદના ફળ में પણ निज को निज से मुक्त करता है और निज को अपने सुख पर्याय फल को भोगता है ऐसे एकत्व को समय दृष्टि जी भाता है अनुभव करता है समझता है चिंतन करता है मिथ्यादि से विपरीत भावना वाला होता है करने सेवा करूं दया पाऊं व्रत पाऊं भक्ति करूं ये बड़ा भावनी भावना જ નહીં છે જ્ઞાનીને ભાવ આવે રાગ પણ એની ભાવના નથી એનો જાણનાર રહીને આનંદને અનુભવે રાગના દુઃખને વેદે છે પણ મારા તરીકે છે વેદે છે નહીં भाने वाला यह पुरुष परमाणु की भांति एक परमाणु एकत्व स्वभाव में उन्मुख होने से एकत्व के भाने में उन्मुख होने से तत्पर होने से उन्मुख किया ना उसे परद्रव्य प्रणति किंचन नहीं होती अपना स्वभाव का आश्रय से कर्ता कर्म को प्रकट किया वितरागी सम्यक दर्शन तो ये पुरुष ने परद्रव्य प्रणति किंचन नहीं होती पूर्ण बात करते हैं और परमाणु की भांति जैसे एकत्व भाव से परिणमित परमाणु वर्ग के साथ संग को प्राप्त नहीं होता एकत्व को भाने वाला पुरुष वर्ग के साथ संपर्क नहीं होता संपर्क वाला संबंध वाला संग वाला नहीं होता इसने परद्रव्य के साथ असमानता के कारण
तो विशुद्ध होता है। और कर्ता कर्म कर्म ने कर्म फल, आत्मा उससे बाता हुआ है। मगरो नीचे समझ वेदों को न मारता अभेद आत्मा कोई बाता है, ये चार ना भेदे नहीं कहते इनके। कर्ता कर्म कर्म ने कर्म फल, चार प्रकार नहीं, अभेद नहीं पाते। विकारी विनायक स्वभाव, उसके अनुभव में विनायक की भावना है। यह पूर्व पर्याय से संकीर्ण नहीं होता, पर्याय में खंडित नहीं होता। इसलिए पर्यायों के द्वारा संकीर्ण होने से सुविशुद्ध होता है। बहुत गाथा से मेरा अज्ञान भाव में भी स्वतंत्र करता અને જ્ઞાન ભાવ में भी स्वतंत्र करता मेरे पर की सा कुछ नहीं। સગવડતા ખાવા પીવાની પૈસા નહીં હોય તો કઈ ઘન કહી શકે વાત નથી। એ રીતે ગાથા 126 નો વિસ્તાર પૂરો થયો। આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। હવે સુખધામ બોલીએ। जयते